then the equation are pair of linear equation. The one equation as a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. a1x plus b1y a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is the pair of linear equation in two variable. a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is a pair of linear equation in two variable. Now we find the condition of a pair of linear equation. They have three conditions. Now first, they have three conditions. Now first, as the two line intersect. The two line intersect. Number two, the two lines are coincidents and the two lines have infinite many solutions. The two lines will not intersect, they are parallel. The two lines will not intersect, the two lines will not intersect, that is, they are parallel. And third, they are coincident. It means, coincident means the one line is overlapping to the other line. The one line is overlapping to the other line. One line is overlapping to the other line. And third, they will be coincident. Therefore, the two equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. The two line intersect. Second possibility, the two lines will not intersect, then that is they are parallel. And the third condition, they will be coincident. That is clear. They have three possibilities. These have the three possibilities of the pair of a linear equation. देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है
एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and the second a2x plus b2y plus c2 equal to 0. The two lines intersect. They have three possibilities. They have three possibilities of the equation. यहाँ इक्वेशन को लेकर के, इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को लेकर के हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पेयर ऑफ इक्वेशन को लेकर के हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज बनती है। वन कंडीशन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सेकेंड कंडीशन, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? तो या तो ये पैरेलल होंगे, अगर पैरेलल नहीं होंगे तो ये कोइंसिडेंट होंगे। सो दे हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ द कंडीशन। ये दोनों लाइन या तो एक दूसरे को काटेंगी, अगर नहीं काटेंगी तो या तो ये पैरेलल होंगी या ये दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे। दैट इज द कंडीशन। एंड नेक्स्ट एज द next as the consistent and inconsistent. Next as the consistent and inconsistent. Consistent, देखो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होगा। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे हम अगर कंसिस्टेंट की बात करते हैं, जैसे आपको कहा जाए कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। आपसे कहा जाए कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब आपको बताना है कि इसमें किसकी क्या कंडीशन है कंसिस्टेंट की। द क्वेश्चन विल बी अराइजेज एज दैट, अगर क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह से बनता है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो बताइए क्या ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट की जो कंडीशन है
कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 has at one solution that is the system of equation will be consistent। यानी कि अगर इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद कम से कम एक सॉल्यूशन अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। is said to be consistent it has at least one solution। कम से कम इसके पास एक सॉल्यूशन होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, तभी हम कहेंगे कि ये हमारा कंसिस्टेंट है। एंड द सेकेंड inconsistent a system of equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x a system of equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 plus c2 equal to 0 is said to be inconsistent it has no solution so such equation have inconsistent। अगर आपको इक्वेशन दिया गया है और उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे कैसे 2x plus 4y plus 8 equal to 0 and 4x plus 8y plus 16 equal to 0। ये दो इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन में ये दो इक्वेशन दे दिया गया है। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट छांटना है, बताना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे या ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे। आप देख रहे हैं कि 2x plus 4y plus 8 equal to 0 and 4x plus 8y plus 16 equal to 0 plus 16 equal to 0।
दैट इज 18। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें बताना है कि ये सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट है या सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट है। इनको देख करके, इस इक्वेशन को देख करके हम ये कहेंगे कि A1 और A2, B1 और B2, C1 और C2, A1 आपका 2 है, B1 आपका 4 है, C1 आपका 8 है, A2 आपका 4 है, B2 आपका 8 है और C2 आपका 18 है। इन तीनों में रेशियो फाइंड करना है कि उस रेशियो की कंडीशन क्या है, और उसी कंडीशन के आधार पर हम फाइंड करेंगे, उसी कंडीशन के आधार पर हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वह इनकंसिस्टेंट होगा। अब क्यों इनकंसिस्टेंट होगा ये अभी इसके आगे बताते हैं आपको कि ये इनकंसिस्टेंट कब होगा, ये कंसिस्टेंट कब होगा। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन the system of equation have inconsistent. The system of equation have inconsistent. Why be the condition of inconsistency? So therefore, for the condition of consistency, A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, system of consistency, and A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, that system of equation or pair or equation have an infinite number of solution, and the A1 upon A2 not equal to B1 upon B2, A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2। अगर ये कंडीशन है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2, that's equal to inconsistent, that's equal to inconsistent। यहाँ पर जो कंडीशन का फॉर्मेशन होगा वो इनकंसिस्टेंट का होगा। अब कंडीशन देखते हैं इसके बाद। देखो A1x B1y
plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अब ये कंडीशन नंबर 1, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन यूनिक बन रहा है तो कंडीशन क्या होगा? अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो ऐसे केस में कंडीशन क्या होगा उसको चलो देखते हैं। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। And the second condition, for infinite many solution, infinite many solution, इसके लिए क्या कंडीशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। एंड थर्ड, नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर जो कंडीशन है, यहाँ पर जो कंडीशन है A1 अपॉन A2 B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. So they have three conditions. That is very important of the topic. अगर दो इक्वेशन आपको दिया गया है, आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वेश्चन को देख करके ये बताना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ दैट, इस कंडीशन के आधार पर आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें जो है कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए है, कौन मेनी सॉल्यूशन के लिए है और कौन नो सॉल्यूशन के लिए है।